Bengali or English, whatever you like. Start with the word of prayer. Let us pray. Our Father in heaven, we thank you and praise you. You've given us this peaceful day in our lives. So Lord, thank you. Your servant is Pastor Paul. He has given this. Ask, Lord, you give them good knowledge and health, and your Holy Spirit can help them. So Lord, I pray everybody know about your word, oh Lord, Father Jesus. Pray for our internet, Lord, you give them some good connection to our internet. Yes. Those who are not joined, you can talk with their heart, they can join this meeting. Lord, Father Jesus, we thank you and praise you. In Jesus' precious name we pray. Amen. Amen. Okay, praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। So we will start the class today. We will just brief regarding the last class which we had. और आज की क्लास को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा सारांश में जो कुछ हमने पहले अध्ययन किया था उसके बारे में भी हम देखेंगे। If you do not understand any of the previous lesson, please WhatsApp to me personally. We can also discuss or I can teach you back again, because these two chapters are very important for us to understand the rest of the chapters. अगर आप किसी भी बात को नहीं समझ पाते हैं जो कुछ अब तक सिखाया गया है, तो कृपया कर आप जो है हमसे बाद में पूछ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है समझने के लिए आगे, कि आप पहली बातों को जो है समझें, अवश्य समझें। I always like to mention this, that the book of Revelation is a very easy book to understand. मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि प्रकाशित वाक्य की किताब बेहद आसान किताब है। The only thing that you and I need to understand is Bible interprets Bible. और आपको और मुझे सिर्फ यही समझने की ज़रूरत है कि बाइबल का व्याख्यान करती है। So the book of Revelation is more about end time plan of God of what is going to happen. प्रकाशित वाक्य की किताब जो है वो अंतिम जो परमेश्वर की योजना है, जो अंत समय की जो मूल योजना है उसके बारे में बताती है। Unless we understand the book of Revelation, then only we can understand clearly about Jesus coming and be prepared for his coming. और जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को समझ लेते हैं, तब हम प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन को भी समझ लेंगे। Without understanding the book of Revelation, then everybody will get confused with the coming of our Lord and Savior Jesus Christ. और जब तक प्रकाशित वाक्य की किताब को ना समझें, तब तक आप यीशु के दूसरे आगमन के बारे में संदेह में रहेंगे। To understand the book of Revelation, we need to understand the prophecy of Daniel 70 weeks. प्रकाशित वाक्य की किताब को समझने के लिए दानियल के 70 सप्ताह की भविष्यवाणी को समझना बेहद जरूरी है। Because Daniel 70 weeks was given by God through angel Gabriel to Daniel, and it is about for their people, who is the Jewish people, and their holy city Jerusalem. और दानियल के 70 सप्ताह की जो भविष्यवाणी है वो परमेश्वर के द्वारा जिब्राइल स्वर्गदूत के माध्यम से दानियल को दी गई, और ये उनके अपने लोगों के बारे में है और यरूशलेम की दशा के बारे में है। Daniel 70 week prophecy got nothing to do with the church. दानियल के 70 सप्ताह की जो भविष्यवाणी है उसका चर्च से कुछ भी लेन देन नहीं है। Church was not there during the time of the prophecy was given during the time. और जिस समय भविष्यवाणी दी जा रही थी उस समय कलीसिया मौजूद नहीं थी। So that is why we must understand Daniel's 70 week correctly, of what is known and what is unknown. और इसलिए हमें दानियल के 70 सप्ताह की भविष्यवाणी को समझना है कि क्या बातें गुप्त हैं और क्या बातें प्रकट की गई हैं इसके अंदर। If we can understand what is known correctly, अगर हम ध्यान पूर्वक इसको समझ पाएं ठीक से कि जो बातें गुप्त हैं, then I can help you to give 3 questions of what is unknown. और उसके बाद मैं आपको 3 सवाल जो है ऐसे दूंगा कि कौन सी वे बातें हैं जो गुप्त हैं, अगर हम जानी हुई बातों को समझ लेते हैं तो। For us to understand and appreciate the book of Revelation.
और ये हम प्रकाशित वाक्य किताब को समझ पाएंगे और उसकी सराहना भी कर पाएंगे। You might ask me, how do I get the 3 questions? और आप हो सकता है सवाल करेंगे कि मैं किस तरीके से मुझे 3 सवाल मिलेंगे, Because in the book of Daniel, chapter 12, verse 4 and 9, क्योंकि दानियल नबी की किताब अध्याय 12 4 से लेकर के 9 तक God told Daniel, and God also closed and sealed up certain prophecies that was given to Daniel. और दानियल के इस जो है अध्याय के अंदर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है कि वहाँ पर उसने परमेश्वर ने उससे कहा कि इस पुस्तक को जो है बंद कर दे और इस पर मोहर कर दे। So something has been closed or sealed. तो इसका मतलब यह है कि कोई ऐसी बात है जिसके ऊपर छाप की गई है या बंद कर दी गई है, In another word, it is called hidden. और दूसरे शब्दों में से कहते हैं छिपा हुआ। So something is hidden and it has to be revealed. और कुछ ऐसी बात गुप्त है, भेद है या छिपी हुई है और उसको प्रकट करना बहुत जरूरी है। That is why God has given through Apostle John the book of Revelation. और इसलिए परमेश्वर ने प्रेरित यूहन्ना के माध्यम से प्रकाशित वाक्य की किताब दी, Revealing something which is hidden. और उन बातों को प्रकट करना जो अभी तक छिपी हुई थी। Just for a thought of the day today, और आज के विचार के लिए if you read the entire Bible, अगर आप संपूर्ण बाइबल को पढ़ेंगे, only one place in the Bible that God has closed and sealed some prophecies. केवल एक ही स्थान पर परमेश्वर ने बाइबल की जो भविष्यवाणी है उसको मोहर लगा करके बंद किया। That is in the book of Daniel, 70-week prophecy. और वो केवल दानियल नबी की किताब और उसका 12वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, जब 9वें अध्याय में जो कि दानियल नबी की 70 सप्ताह की भविष्यवाणी है उसको। And in the entire book of the Bible, there is only one place where God has, Jesus is opening up and unsealing a scroll which he took from God. और पूरी बाइबल के अंदर केवल एक जगह पर प्रभु यीशु मसीह उस मोहरों को एक एक करके खोलते हैं। And in that chapter itself, Revelation chapter 5 itself, it says that no one in heaven, no one in earth, no one under the earth was able to take the scroll from God and to unseal it. और 5वें अध्याय के माध्यम से जब हम देखते हैं तब हम पाते हैं प्रकाशित वाक्य में कि वहाँ पर ना तो कोई स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना कोई जो है उसके नीचे या ऊपर कोई ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर के हाथ से उस किताब को ले और लेकर के उसकी मोहरों को खोल सके। Apostle John wept. और लिखा है कि प्रेरित यूहन्ना रोया। He cried because there is no one to take and open it, the end time event or what is written in the book which God hold. और वो रोया इसलिए क्योंकि जो अंत समय की घटनाएं हैं उसको खोलने, प्रकट करने के लिए पूरे संसार भर में ना ही स्वर्ग में ना ही पृथ्वी पर कोई दिखाई दे रहा है। Then one of the elders said, the lion और from the tribe of Judah, that is Jesus, the lamb which was slain, is worthy and was able to open, to take the scroll and to unseal it. और तब एक प्राचीन जो है इस प्रकार से कहता है कि इस पुस्तक को खोलने और इसकी मोहरों को तोड़ने के योग्य यहूदा का सिंह जो कि मेमना है वो इस योग्य ठहरा है। If the Bible interprets Bible, one place is unsealed, the other place is revealed. और बाइबल अगर बाइबल का अनुवाद करती है तो इसका मतलब है एक जगह पर इसे गुप्त रखा गया है लेकिन दूसरी जगह पर इसे खोला गया है। So no doubt about that it is that thing that has been revealed. तो इसके बारे में कोई संदेह नहीं है कि ये बात बिल्कुल ठीक है, वही बात है जो वहाँ पर लिखी हुई है। Now we are going to go back to the class on last class about the Daniel 70 week, but I will go very fast on this. और दानियल के 70 सप्ताह की भविष्यवाणी के बारे में चलेंगे जो पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे थे और थोड़ा सा तेज चलेंगे। Right? ठीक So है। if you can see, this is all that I have already explained, but I want to let you know Daniel 9:24 to 27 will surely come to pass. और मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको पहले से बता भी दिया है दानियल 9:24 से लेकर के 27 कि कोई भी ऐसी
ईश्वरी जो भविष्यवाणी होती है वे हमेशा सत्य साबित होती हैं और पूरी होती हैं। So Daniel's 70 weeks prophecy is for the nation of Israel and holy city. That one you must never forget it. और इस बात को आप हमेशा याद रख लें कि दानियल के 70 सप्ताह की भविष्यवाणी है वो इज़राइल के लिए है और केवल उन्हीं के लिए लिखी गई है। With that in mind, if we go into the deep meaning of Daniel's 70 weeks, there are three main events that is set in that prophecy. और इस जो भविष्यवाणी है इसके अंतर्गत जो है 3 मुख्य घटनाएं हैं जो वहाँ पर सेट होती हैं और इनको आप दिमाग में रखें। So for the Israelite people, 490 years is given to them from the time of when the decree was given by King Exerxes. और इज़राइल के लिए अक्षरस की आज्ञा निकलने के समय से लेकर के 490 वर्ष का समय दिया गया था। I have already told you why 490 years before. और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 490 वर्ष ही क्यों दिए गए थे। So it is divided into three parts. और ये 3 भागों में विभाजित किए गए हैं 490। So 7 week, which is 49 years, it is for the decree to rebuild Jerusalem, not the temple. और जो 7 वर्ष हैं वो यरूशलेम को बनाने के लिए, मंदिर नहीं परंतु यरूशलेम को बनाने के लिए दिए गए थे। From the time when Daniel was in Persia, King Exerxes decreed, and then during the time many people went back, and Nehemiah, Ezra, Zerubbabel, they rebuilt back the temple. और जब सीरिया में दानियल था तब जो है उस समय अक्षयस राजा ने आज्ञा दी और उसके बाद कई लोग आए और गए वापस जो है, उसके बाद जो है यरूशलेम को बनाने की आज्ञा दी गई। Nehemiah also rebuilt the wall of Jerusalem, and he was the first governor back then during the time of Persia when Jerusalem was rebuilt back again. और नहम्याह ने भी यरूशलेम की दीवार को जो है बनाया था और वो गवर्नर के रूप में था पार्शिया में जिस समय वो बना रहा था। Historically and biblically 49 years was taken. और ऐतिहासिक तौर पर या बाइबलीय तौर पर दोनों में जो हम देखते हैं तो ये 49 वर्ष जो है बीत जाते हैं इसमें। After the 49 years when the temple was dedicated, और 49 वर्ष के बीतने के बाद जब मंदिर को समर्पित किया जाता है, the second part is 62 weeks, which is 434 years, that Jerusalem is rebuilt, and then the anointed one, Jesus Christ, died on the cross. और उसके बाद जो है 62 सप्ताह का समय बीतता है जब यरूशलेम को फिर से बनाया जाता है, बना करके यीशु मसीह तक। After Jesus died, the 70th week did not happen. यीशु के मरने के बाद जो है 70वां सप्ताह होना चाहिए लेकिन 70वां सप्ताह घटित नहीं हुआ। So a total of 69 weeks, 70 out of the 70 weeks, 69 week has already happened. So ये 70 में से 69 जो सप्ताह हैं वो बीत गए। Out of the 490 years, 483 years is already finished. और 490 वर्ष में से 483 वर्ष जो है पहले ही खत्म हो चुके हैं। So if we can see the 69 week of Daniel, this is the diagram for you to understand. और अगर आप देखेंगे दानियल के जो 70 सप्ताह है उसके 69 सप्ताहों को तो आप पाएंगे कि ये जो है 69 सप्ताह समाप्त हो चुके हैं अध्ययन करने के माध्यम से। So Daniel was in Babylon captivity. और दानियल जो है वो बाबुल की बंधुआई में था। Then King Exerxes, the king of Persia, he has said they can go back and rebuild Jerusalem. और तब उसके बाद राजा अक्षरस ने जो कि पार्शिया का राजा था उसने कहा कि वे वापस जा करके The Israel people went back and rebuilt Jerusalem for 49 years or 7 weeks. और वे जो है जाकर के यरूशलेम के मंदिर को बना सकते हैं Under the leadership of Ezra, Nehemiah and also Zerubbabel. और तब जो है एजरा नहम्याह और यरूबबेल के अगुवाई में होकर के उस मंदिर को बनाया गया। After the Jerusalem is rebuilt, from that day to the Messiah crucifixion is 62 weeks or 434 years. और यरूशलेम के मंदिर से लेकर के यीशु मसीह के
काटे जाने तक, मारे जाने तक जो है 69 सप्ताह का समय बीता। टोटल मिलाकर के 483 वर्ष होते हैं। So after Jesus died on the cross, you will ask me a question, where is the last week? और ये सारी बातों को सुनने और समझने के बाद आप मुझसे सवाल करेंगे कि आखिरी जो सप्ताह है वो कहाँ पर है। That is called the 70th week of Daniel. और इसको दानियल का 70वां सप्ताह कहते हैं। It did not happen. और ये अभी तक घटित नहीं हुआ है। That prophecy didn't take place. और भविष्यवाणी जो है वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। Why it didn't take place? ये क्यों पूरी नहीं हुई है? There are some of the reasons which I can give you. और इसके कुछ एक कारण है जो मैं आपको बता सकता हूँ। The Israelite rejected the Messiah. पहली बात, इजरायलियों ने मसीहा का इनकार कर दिया। So when they didn't accept Jesus Christ, सो जब उन्होंने उसका इनकार कर दिया, Jesus told Peter that he will build his church, which is the Gentiles' time. तब यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि वह अपनी कलीसिया बनाएगा जो कि अन्य जातियों में से होगी। So basically the clock has paused after the Messiah was cut off. और जो बुनियादी तौर पर यदि हम बातचीत करें, जब मसीहा के काटे जाने के बाद से लेकर के जो घड़ी है वो इजरायलियों के लिए रुक गई। The 70th week is what Jesus called the Great Tribulation, which is yet to come. और यीशु मसीह 70वें सप्ताह को महाक्लेश का नाम देते हैं, जिसका अभी होना बाकी है। So it hasn't happened yet. और अभी तक नहीं हुआ है। So that in between that 69 week to the 70th week, it is called the church age or the grace period. और 69वें सप्ताह से लेकर अंत से लेकर के 70वें सप्ताह के शुरू होने के बीच में कलीसिया युग को रखा गया है। So the reason why the 70 week was given is also given here. I have already told you all. और क्यों यहाँ पर ये 70 सप्ताह का समय दिया गया है, क्यों दिया है, ये मैंने आपको बता दिया है। Some of the thing has already been completed, और कुछ बातें पहले ही पूरी हो चुकी हैं, but there are 7 things that need to be completed, but it is not done yet. और 7 ऐसी बातें हैं जिनका पूरा होना अभी बाकी है, Okay. लेकिन अभी तक नहीं हुई हैं। You can read the notes later. और बाद में आप नोट्स में पढ़ सकते हैं। Okay, and here I have Okay. already explained to you in the last class. These are the matters which is already known in the Daniel's prophecy. और मैंने आपको ये भी बताया था पिछली क्लास में, दानियल की भविष्यवाणी में ये वो बातें हैं जो प्रकट की गई हैं। If you understand Daniel's prophecy correctly, you will understand the book of Revelation very correct. अगर आप दानियल नबी की 70 सप्ताह की भविष्यवाणी को समझ लेते हैं, तब आप प्रकाशित वाक्य को बिल्कुल ठीक समझ पाएंगे। We must first understand it first. और सबसे पहले हमें इसको समझने की जरूरत पड़ी। You go back and then take this and read it with the verses given at the side. और आप जाएं इसे लेकर के और जो साथ में आयतें दी हुई हैं उन आयतों को जरूर पढ़ें। Why 70 years of captivity of the Israelite people in Babylon? और बाबुल के अंदर 70 जो है वर्षों की गुलामी का समय जो है वो क्यों रखा गया था? As I was telling, during the time of Moses, God told Moses that if they go inside the promised land which God in the land of Canaan, Joshua lead them and they are supposed to rest, give a rest for the land for the 7th year, every 7th year. और जैसे कि मैंने बताया था कि जिस समय यहोशू के द्वारा जो है उनको कनान के देश में जो वायदा किया हुआ देश था जाना था, उस समय जो है मूसा के द्वारा ये कहा गया था कि उनको हर 7वें वर्ष जो है भूमि को आराम देना पड़ेगा। For 490 years they did not leave the land to rest. It is all inside this verse. और 690 वर्ष तक उन्होंने भूमि को आराम नहीं दिया। इस आयतों के अंदर ये बातें प्रकट की गई हैं। 490 divided by 490 divided by 7 is 70 years. और 490 जो है 7 के द्वारा जब हम गुणांक करेंगे तो ये 70 सप्ताह निकलेगा। So God sent the Israelites people out of the promised land to let the land rest for 70 years.
और परमेश्वर ने उस देश में से उन्हें बाहर निकाल दिया, बाबुल की गुलामी में भेज दिया। उसका कारण यही था ताकि 70 वर्षों तक या 490 जो है वर्षों तक इज़राइल जो है वो देश आराम में रहे। So the next question is, how much is 7 times 70 is 490 years. और अभी कितना बनता है? 70 गुना 7, ये 490 बनता है। What are the 7 things need to happen during this time is written all here. और कौन सी 7 बातें हैं जो इस दौरान घटेंगी, वो भी यहाँ पर लिखी हुई हैं। When does the prophecy start? It's a decree to rebuild Jerusalem. और कब जो है भविष्यवाणी की शुरुआत होती है? तब से जब से अक्षत राजा के द्वारा आज्ञा निकली। How much is 69 times 7 is 483 years. और कितने बनते हैं? 7 गुना 7, ये 469। ओके, 69 times 7. 69 times 7। ओके, ये 69 गुना 7 कितना बनते हैं? तो ये 483 बनते हैं। What event ends at the 69 weeks, end of 69 week, the Messiah died on the cross. और 69वां जो सप्ताह है, कौन सी घटना 69वें सप्ताह का अंत करेगी? यीशु मसीहा का काटा जाना। How much time is left from this period? तब से 1 week or लेकर 7 के years? अब तक जो है कितना समय बता है? ये जो है 7 साल या फिर 1 सप्ताह। What will be the prince of the world come to do, or the antichrist will do? He will make a covenant with many. और वह प्रधान आकर के क्या करेगा? वह बहुतों के साथ वाचा बांधेगा। For how long? 7 years. और कब तक? 7 वर्ष तक। What के else लिए। the prince of the world or prince of the earth will do? In the midst of the week he shall cause sacrifice and the obligation to cease. और वो क्या करेगा? वो जो है मध्य में आकर के, सप्ताह के मध्य में आकर के बलिदानों को रोक देगा। So these are the things which is known. और ये वो बातें हैं जो प्रकट की गई हैं। So let's see what is unknown. और अब हम देखेंगे ऐसी वे बातें जो गुप्त हैं, If you read भेद हैं। Revelation chapter 1 verse 19, अगर आप प्रकाशित वाक्य 1:19 पढ़ेंगे, Jesus told John to write 3 things in the book of Revelation. तो प्रकाशित वाक्य की किताब में यीशु मसीह ने यूहन्ना से कहा 3 बातों को लिख ले। This you have to understand it very clearly. और इसको आपको बहुत स्पष्ट रूप से समझने की जरूरत है। This is where many people make a mistake by quoting the book of Revelation. और यहाँ ये वो स्थान है जहाँ पर बहुत सारे लोग जो है गलतियाँ करते हैं इस आयत को लेकर के दिखाने के द्वारा। The revelation that you and I have is actually written by John and mentioned by Jesus Christ. और प्रकाशित वाक्य जो आपके और मेरे पास है, असल में यूहन्ना के द्वारा लिखा गया, यीशु मसीह के द्वारा बोला गया। So you and I have to 100% believe that John wrote what Jesus told to write. और आपको 100% विश्वास करना होगा कि यूहन्ना ने वही लिखा जो यीशु मसीह ने कहा। He didn't write unnecessary things there. और वहां पर उसने अनचाही बातों को नहीं लिखा है, Only what he saw he wrote. और केवल जो उसने देखा वही लिखा। So what is the first thing that Jesus asked him to write? और पहली बात कौन सी है जिसे यीशु मसीह ने उससे कहा So कि लिख ले। Revelation chapter 1 verse 19 says, write these things which thou hast seen. Number 1, which thou hast seen is past. और कहता है कि लिख ले वो बात जो तूने देखी हैं, Okay? यानी कि And, जो गुजर चुकी हैं, भूतकाल हैं। and means the next thing. और जब कहता है और, इसका मतलब है अगली बात। The things which are. और जो बातें हो रही हैं, That means during the time when John was living, what is the thing that he is going through now? और जिस समय यूहन्ना जीवित था उस समय कौन कौन सी बातें हो रही थी, क्या हो रहा था वहां पर। Then the next one, the things which shall be hereafter. और कहता है और इसके बाद जो बातें होने वाली हैं, Meaning after these things which are, that is the church, after the church is taken off, then what will happen is hereafter. इसका मतलब है कि जो दूसरी बात है कि कलीसिया के उठा लिए जाने के बाद कौन सी घटनाएं घटने वाली हैं, उन बातों को लिख ले। तीसरी बात कहता है, Okay, as I've told you, what would have Daniel asked the question? The question number 1 he would have asked is, who is the Messiah?
सो दानियल ने जब सवाल किए होंगे तो हो सकता है उसने ये सवाल किया हो मसीहा जो है वो कौन है, Because in the Daniel's prophecy of 70 week, he said the Messiah will be cut off. क्योंकि 70 सप्ताह की भविष्यवाणी में वो बताता है कि मसीहा जो है वो काटा जाएगा। So God gave or revealed in the book of Revelation, Revelation chapter 1, Jesus Christ is the Messiah. और प्रकाशित वाक्य 1 की किताब 1 अध्याय में जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि यीशु मसीह मसीहा है। The question number 1 which thou hast seen. और उसके बाद पहली बात है जो तूने देखी। So John saw the resurrected Jesus Christ. तो यूहन्ना ने पुनर्जीवित यीशु मसीह को देखा। You and I very well know when Jesus was in this earth, मैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे John is actually a cousin of Jesus Christ. और यूहन्ना जो है वो यीशु मसीह का कजन था। John's father is Zebedee, और यूहन्ना का जो पिता था वो जब्दी था mother is Salome. और माता सलोमी थी। So they are actually related to Jesus' family, Mary and Joseph. और मरियम और यूसुफ का जो परिवार है वो यीशु मसीह के परिवार के साथ वो संबंधी थे। John left the boat of his father Zebedee and followed Jesus Christ. और यूहन्ना ने अपने पिता की नाव जो है जब्दी की छोड़ दी और यीशु मसीह का अनुसरण किया। John ate with Jesus, slept with Jesus, saw all miracles and was with Jesus 3.5 years. और यूहन्ना यीशु मसीह के साथ रहा, खाया पिया सोया और यीशु मसीह के चमत्कार भी देखे। He saw 3.5 साल Jesus तक। in Mark chapter 2, Mark chapter 9, the transformation or transfiguration of Jesus Christ. और उसने यीशु मसीह के रूपांतरण को होते हुए देखा। He saw Jesus. उसने यीशु को देखा। He saw Jesus when he was on the cross, and Jesus told, "Woman, behold your son. This is your mother." और उसने यीशु मसीह को तब भी देखा जब वो क्रूस के ऊपर था और उसने कहा कि हे नारी देखिए तेरा पुत्र है और उससे कहा कि देख ये तेरी माता है। John saw everything that Jesus did in this earth. इस पृथ्वी के ऊपर जो कुछ यीशु मसीह ने किया वो सारी बातों को यूहन्ना ने देखा था। But yet when he was in Patmos Island, परंतु फिर भी जब वो पतमुस टापू पर था, John even saw Jesus who was buried and came back to life, resurrected again. 40 days he saw. और माफ कर यूहन्ना ने यीशु मसीह को तब भी देखा जब वो मारा गया, गाड़ा गया, फिर तीसरे दिन मृतकों में से जिंदा हुआ और 40 दिन तक उनके साथ रहा। John even saw Jesus who was taken up in the cloud. और तब भी यीशु मसीह को देखा जब वो बादलों पर उठाया जा रहा था। Then after the Pentecost, the baptism of the Holy Spirit, और पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के समय में भी। then the disciples went through a persecution time. और उसके बाद जो चेले थे वो एक सताव के समय से होकर के गुजरे। John was in Patmos Island while praying in the Spirit. और यूहन्ना पतमुस टापू पर था जब आत्मा में प्रार्थना कर रहा था। He saw Jesus Christ in the vision. तब उसने दर्शन में यीशु मसीह को देखा। So this is what John saw about Jesus Christ, the resurrected or the judge Jesus Christ. और ये वो है जिसको यूहन्ना ने देखा जो कि पुनर्जीवित है और न्यायी है, न्यायी के रूप में उसे देखा। The thing that Jesus was wearing, he saw Jesus a high priest. और वो वस्त्र जो यीशु मसीह ने पहना हुआ था वो बिल्कुल ऐसा था जैसे महायाजक पहनता The है। moment Jesus turned, John fell like a dead man. और वह क्षण जब यीशु मसीह घूमा तो यूहन्ना मृतक के समान नीचे गिर पड़ा। Many people ask me a question, why John fall down? बहुत से लोग सवाल करते हैं कि यूहन्ना क्यों गिर पड़ा। I will tell you that this is the same incident which happened to Isaiah. और ये मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये ठीक वैसी ही घटना है जब यशायाह नबी के समय में हुई। Our life in this earth, how pure and how holy we are also, is not enough to be in the presence of God, who is the holy of the holiest.
और ये कहूंगा कि हमारा जीवन इस पृथ्वी के ऊपर कितना भी पवित्र क्यों ना हो, कितना भी शुद्ध क्यों ना हो, तब भी उस परमेश्वर के सामने, उस सामर्थी परमेश्वर के सामने ये अशुद्ध जैसा ही दिखाई पड़ता है। So John saw Jesus Christ, Revelation chapter 1. सो पहला अध्याय प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना ने यीशु मसीह को देखा। Next question Daniel would have asked is, what will happen if the Messiah is cut off? What will happen to his people and the holy city Jerusalem? और दूसरा सवाल जो है वो दानियल ने ये पूछा होगा कि मसीहा अगर काटा जाएगा या मारा जाएगा, उसके बाद उसके लोगों का क्या होगा। That means what will happen 69th week end and to the 70th week beginning. और इसका मतलब यह है कि 69वें सप्ताह के अंत पर और 70वें सप्ताह के शुरुआत होने के बीच में क्या होगा। The answer is revealed in the book of Revelation. और प्रकाशित वाक्य की किताब के अंदर जो है वो जवाब दिया गया है Chapter 2 and chapter 3. दूसरा और तीसरा अध्याय में। Jesus spoke to the 7 churches. यीशु मसीह 7 कलीसियाओं से बातचीत करते हैं। Why 7 churches? 7 कलीसियां क्यों? 7 is a perfect number, or it is God's complete spiritual number. और 7 जो है वो एक सिद्ध गिनती है और परमेश्वर का एक अनुगामी नंबर है। Is there any other churches there? और क्या और कोई और कलीसिया है? There are many churches there. यहाँ बहुत सारी कलीसियाएं हैं। During the time when John was there, it was around when he got this vision, he was AD 90 to 96. और जिस समय यूहन्ना को ये दर्शन मिला वो AD 96 था और तब जो है उसको ये दर्शन मिला। John was the last disciple to live in this earth. और यूहन्ना जो है वो आखिरी शिष्य था इस पृथ्वी पर जीवित रहते हुए। All the other disciples, Peter, James, Andrew, even Paul, all have already died. और बाकी जितने भी शिष्य थे, पतरस, याकूब और जो है अंद्रियास, यहाँ तक कि पौलुस, वे सब जो है शहीद हो चुके थे। So there were already many churches. और उस समय तक जो है कई सारी कलीसियां स्थापित हो चुकी थी। But Jesus spoke to the church, 7 churches in Asia Minor, not in Jerusalem. लेकिन यीशु मसीह जो है एशिया माइनर की 7 कलीसियाओं से बातचीत करता है, यरूशलेम की कलीसियाओं से So नहीं। what happened to the 69th week to the 70th week is actually a church period. 69 सप्ताह से लेकर के 70वें सप्ताह के शुरुआत होने के बीच में क्या होगा, असल में वो कलीसिया युग है। The answer is in Revelation chapter 2 and chapter 3. और जवाब हमें मिलता है प्रकाशित वाक्य किताब अध्याय 2 और 3 में। Then the next question is, what will happen during the 70th week? और अगला सवाल आता है कि इस 70वें सप्ताह के मध्य में क्या होगा। As I have told you, the 70th week has not happened. और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 70वां सप्ताह अभी तक घटित नहीं हुआ है। So this 70th week will happen. It will be in Revelation chapter 6 to 19. और ये जो सप्ताह है जो घटेगा, ये प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 से लेकर के 19 तक घटित होता आपको दिखाई देगा। In Revelation chapter 2 and 3, church is mentioned more than 20 times. और प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 और 3 के अंदर जो शब्द कलीसिया है वो 20 से भी ज्यादा बार दिया गया है। But Revelation chapter 6 to 19, there is not even one word called church. और प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 से लेकर के 19 तक आप पाएंगे कि एक दफा भी चर्च शब्द का जिक्र नहीं किया गया है। All the opening of the seals, where you see the 7 seals open and the 4 horses and the 144,000, all related to Israel. और जो कुछ हम वहां पर देखते हैं कि 7 मोहरें खोली जाती हैं और उसके बाद घोड़े दिखाई देते हैं, उसके बाद जो है 1,44,000 लोग दिखाई देते हैं, ये सब जो है इजराइल से संबंधित है। So God is going to redeem or save Israel. सो परमेश्वर जो है इजराइल को छुड़ौती देने जा रहा है। He is going to fulfill his prophecies. और वो अपनी भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए उस समय तक जाएगा। And he is going to pour his wrath or judgment on the people during the time of the tribulation period.
और महाक्लेश के दौरान वह अपने क्रोध के कटोरों को उनके ऊपर उंडेल देगा और अपने न्याय को प्रकट करेगा। This 70th week is called by Jesus as the Great Tribulation period. और जो 70वां सप्ताह है वो यीशु मसीह के द्वारा महाक्लेश कहलाता है। This is actually a rough diagram for us to understand it better. और ये एक थोड़ा सा रेखांकन है हमें समझने के लिए। Daniel 70 weeks prophecy. दानियल के 70 सप्ताह की As भविष्यवाणी। I've told you earlier, Babylon captivity 49 years. और जैसा कि मैंने बताया था बाबुल की बंधुआई में 49 वर्ष। Jerusalem is rebuilt. और उसके बाद इस मध्य में जो है यरूशलेम को बनाया गया। Then 62 weeks, 434 years when Jesus was crucified. उसके बाद 62 सप्ताह का समय गुजरा जिसे हम 434 वर्ष कहते हैं जब यीशु Approximately, मसीह कलवरी क्रूस के ऊपर मारा गया। approximately there will be another 2000 years for the church age. और कुल मिलाकर के हम जब अंदाजा लगाते हैं तो 2000 वर्ष का समय जो है वो कलीसिया युग के लिए भी दिया गया है। After Jesus dies, on the Pentecost days, the Holy Spirit came and the church began. और जब यीशु मसीह मारा गया जी उठा उसका ऊपर उठा लिया गया और प्रेरितों के काम अध्याय 2 के अंदर हम पाते हैं कि पेंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा, तब से जो है कलीसिया युग की शुरुआत हो जाती है। They were waiting for the Holy Spirit, और वे पवित्र आत्मा का इंतजार कर रहे थे। and now we are at the end of the 2000 years. We are waiting for Jesus Christ, where the Holy Spirit is in us, which has to be taken up back again. और अब हम जो है 2000 वर्ष के अंत में हैं बिल्कुल करके और यीशु मसीह के आगमन का इंतजार कर रहे हैं जहां पर एक दिन यीशु आएगा और पवित्र आत्मा को वापस लेगा। This event is called the rapture of the और church. इस घटना को कलीसिया में जो है मेघारोहण करके जाना जाता है Where millions of believers will be taken up and meet the Lord Jesus Christ in the air. जहां पर लाखों करोड़ों की संख्या में विश्वासी मध्य आकाश में उठा लिए जाएंगे। Then in the earth, the 7 years of tribulation or the balance week of the 70th week will start to take place. और तब उसके बाद जो है ये 69 सप्ताह का जो समय बीत चुका है उसके बाद जो एक सप्ताह बाकी रह गया था उसका जो है समय शुरू हो जाएगा 7 वर्ष का। Then after the 7 years, in the glorious appearing, Jesus will come down. We will come down together with Jesus on Mount Olive. और जब ये 70वां सप्ताह जो है बीत चुका होगा उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के साथ हम वापस नीचे आएंगे और तब जो है उसके साथ हम शासन करेंगे। Where all the wicked people 1000 will be वर्षों के destroyed. लिए। Where all the wicked people और will be तब destroyed. जितने भी दुष्ट लोग हैं वे नाश कर Unbelievers will be destroyed. और जो अविश्वासी हैं वे भी नाश कर दिए जाएंगे। So all the prophecy which Jesus mentioned for the Israelite people will be fulfilled at this point. सो जो कुछ भविष्यवाणियां परमेश्वर ने करवाई हैं और इज़राइल के बारे में लिखी हैं वो इस समय तक पूरी हो जाएंगी। Then Jesus will rule 1000 years in this earth. तब यीशु मसीह 1000 वर्ष के लिए इसी पृथ्वी के ऊपर शासन करेंगे। We will learn about this later. इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। The next one I'll just go through very briefly again, which is of the same thing. और अगली जो बात है वो मैं बिल्कुल जो है सारांश में आपको बताऊंगा। Answers to the 3 questions. और ये 3 जो सवाल हैं उनका जवाब है Who is the Messiah? कि मसीहा कौन है। In the book of Daniel, the Messiah shall be cut off, but not on himself. In Daniel's vision is the invisible God, the Creator. In Colossians, who came in the form of Jesus Christ, whom John saw in Revelation chapter 1 as the Messiah of what you have seen. और हम पाते हैं कि मसाया जो काटा जाएगा परंतु अपने लिए नहीं, दानियल के दर्शन में वह मसीहा जो अदृश्यमान स्वयं परमेश्वर है, जो रचनाकार है। कुलिसियों किताब अध्याय 1:15 से लेकर के 18 में हम उसे देखते हैं और जिससे प्रेरित यूहन्ना ने देखा वो स्वयं यीशु मसीह है। Okay, the next one. What happened at the end of the 69th week until the beginning of the 70th week of Daniel? और अगला है 69वें सप्ताह के अंतिम भाग और दानियल के 70वें सप्ताह की शुरुआत तक क्या क्या होगा। The clock has paused after the Messiah was cut off in Daniel's prophecy to fulfill Jesus' prophecy of the church age. और दानियल की भविष्यवाणी के अंतिम पड़ाव में घड़ी रुक गई मसीहा के काटे जाने के बाद, ताकि
यीशु की कलीसिया, यीशु की भविष्यवाणी के अनुसार कलीसिया युग की शुरुआत हो सके। The end of the 69 week to the beginning of the 70th week of Daniel's vision is referring to church age, and it is revealed in Revelation chapter 2 and 3 where Jesus spoke to the seventh church. This is what John wrote, the things which are. और 69वें सप्ताह के अंत से लेकर के 70वें सप्ताह के प्रारंभ तक दर्शन कलीसिया युग को प्रकट करता है, जो कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 और 3 में जाहिर है। जब यीशु यूहन्ना से बातें कर रहे थे तो यूहन्ना ने ये लिखा जो बातें हो रही हैं। And final question, और आखिरी सवाल, what will happen in the 70th week of Daniel, और दानियल के 70वें सप्ताह में क्या होगा, which is closed and sealed in the book of Daniel? जो दानियल के किताब के अंदर बंद करके मोहर कर दिया गया। You remember I told you that it was closed and sealed? और आपको याद है मैंने बताया था कि इसको मोहर करके बंद कर दिया गया। That is why when when John was taken up, he saw the throne of God in chapter 4. और वहाँ पर हम देखते हैं अध्याय 4 में प्रकाशित वाक्य में कि जब यूहन्ना को उठा लिया गया तब उसने परमेश्वर का सिंहासन वहाँ पर देखा। In chapter 5, he saw an incident where Jesus taking the scroll from God. और 5वें अध्याय में वो देखता है कि जहाँ पर यीशु मसीह उस पुस्तक को परमेश्वर के हाथ से ले लेते हैं। The detailed event of how the things which will take place after this is the 70th week of Daniel. और दानियल के 70 सप्ताह की पूरा लेखा जोखा जो है कि ये किस तरीके से घटेगा, किस तरीके से होगा, उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। The 70th week of Daniel begins and end is written in Revelation chapter 6 to 19, 14 chapters. और 14 अध्याय हैं इसके, 6 अध्याय से लेकर के 19 अध्याय तक दानियल के 70वें सप्ताह के बारे में जिक्र किया गया है। Where the nation of Israel, holy city Jerusalem, and the earth will be redeemed back by Jesus Christ. जहाँ पर इज़राइल राष्ट्र है और परमेश्वर के पवित्र लोग और यरूशलेम जो नगर है उसको छुड़ा लिया जाएगा। The earth will be redeemed back by Jesus Christ. और यीशु मसीह के द्वारा जो है पृथ्वी फिर से छुड़ा ली जाएगी। Jesus Christ is the king of the earth. और यीशु मसीह पृथ्वी का राजा हो जाएगा। But the Satan is the king of the world. लेकिन शैतान जो है वो संसार का राजा होगा। There is a difference between the king of the earth and king of the world. और इस संसार का राजा होने और पृथ्वी का राजा होने में फर्क है। King of the earth means Jesus is still in control of not only the people, he is also in control of animals and the living creatures, the mountain, sea, and all the thing which is in the earth. और जो कुछ पृथ्वी के ऊपर पाया जाता है, पृथ्वी का राजा होने का मतलब है कि पृथ्वी के ऊपर, मनुष्यों के ऊपर और यहाँ तक कि जानवरों के ऊपर, तमाम जो पर्यावरण है उसके ऊपर भी वही राजा है। Satan is not control of everything. और शैतान जो है सब वस्तुओं के ऊपर अधिकारी नहीं है। He is in control of the human, politically, and the kings. और वो मनुष्य के ऊपर अधिकारी है और राजनीतिक तौर पर जो है क्या नाम है, सत्ता के तौर पर जो है मनुष्यों को काबू किए हुए है। God created the world and gave it to Adam, परमेश्वर ने संसार की रचना की और आदम को दे दिया asking him to rule. और उससे कहा कि वह शासन करे। But when Adam sinned, he gave the earth, he gave the world to Satan. लेकिन जब आदम ने पाप कर दिया तो उसने वो शासन की जो कुंजी है वो शैतान के हाथ में। That is why in the temptation of Jesus Christ 40 days in the wilderness, और इसीलिए यीशु मसीह का 40 दिन तक जो है हम पाते हैं जंगल के अंदर परीक्षा हुई। that is why Satan took him and showed him the whole kingdom and said, I will give the kingdom to anyone I like, if you only will bow down and worship me. और इसलिए शैतान जो है यीशु मसीह के पास आया और आकर के कहने लगा, ये जगत का राज्य मुझे दिया गया और जिस किसी को चाहता हूँ मैं उसे देता हूँ जो मुझे झुक करके प्रणाम करता है। Jesus never tell this kingdom doesn't belong to you. और यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि यह राज्य तुम्हारा नहीं है। He knows the kingdom is still under the Satan control. Human beings are under Satan control.
और वो जानता था कि अभी तक मानव जाति जो है वो शैतान के अधीनस्थ है। He knows that human have fallen short of the glory of God and और Satan is in control of them. और वह जानता था कि मनुष्य जो है वह पाप से भरा हुआ है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, और जो है मनुष्य पर शैतान के अधीनस्थ हो गया है। Paul says that we are, because of our sin, we are slave to the sin. और पौलुस इस प्रकार से कहता है, हमारे पाप की वजह से हम पाप के दास हैं। So now Jesus have to take back everything which Adam lost. और अब यीशु मसीह को वो सब छीनने और वापस लेने की आवश्यकता है जो कुछ आदम ने खो दिया था। He is the second Adam who will come back to redeem back the earth again. और वो दूसरा आदम है जो वापस आएगा ताकि सारी वस्तुओं को छुड़ौती करवाए। So what will happen in the 70th week is written in 6 to 19 Revelation. और क्या होगा 17वें सप्ताह में, ये 6 से करके 19 अध्याय तक जिक्र किया गया है। Okay, I think I cannot go to the next chapter till I finish the other one. Okay, I will just start off the next chapter, but bear with me that I have to stop in another, I think how many minutes more? Another 20 minutes. Okay. और बाकी के हमारे पास 20 मिनट बचे हैं, सो तब तक आप मेरे साथ थोड़ा सा बने रहें। Anybody got any question on the 70th week of Daniel prophecy? और दानियल के 70 सप्ताह की भविष्यवाणी के विषय में किसी के पास यदि कोई सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं। If you have any question, please keep it and I will answer you in the next, after the 20 minutes. और 20 मिनट के बाद यदि आपके पास कोई सवाल है तो आप उसे रख सकते हैं। 20 मिनट के बाद आप उसका जवाब दिया जाएगा। Okay, let me go on to the next chapter, which is God's master plan or human plan of 7,000 years. और अगले जो है अध्याय में जाऊंगा जो परमेश्वर का मूल योजना है मनुष्य के लिए 7,000 वर्ष की। Here we are going to deal with what happened before and after creation of man. और की रचना से पहले और मनुष्य की रचना के बाद क्या हुआ, Until new heaven and new earth. जब तक नया आकाश और नए पृथ्वी रचे जाएंगे तब तक। Okay, this is a very important topic. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। We will always ask, what is God's plan on our life? और हम हमेशा पूछते हैं कि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन के बारे में क्या है। Today we want to look into what is God's plan on this earth or human. और हम जो है पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि परमेश्वर की योजना मनुष्य के बारे में इस पृथ्वी के ऊपर क्या है। Please don't be selfish in asking God, what is your plan in my life? और आप स्वार्थी ना बने ये पूछने के द्वारा है कि परमेश्वर मेरी जिंदगी के बारे में तेरी क्या योजना है। Just open up your mind and heart to see what is God's entire plan for the human or the earth itself. और अपने दिमाग को थोड़ा सा खोलें और इस बात की जांच और परख करने की कोशिश करें कि परमेश्वर का पूरी मानव जाति या पूरे संसार भर के लिए योजना क्या है। So we are going to see God's master plan of 7,000 years. सो हम देखने के लिए जा रहे हैं परमेश्वर की मूल योजना 7,000 वर्ष की मानव जाति के लिए। I want to talk only according to the Bible. मैं केवल बाइबल के अनुसार ही बात करना पसंद करता I हूँ। know sometimes scientists speaks about 3 million years, 10 million years and so on and so forth. और कई दफ़ा मैं जानता हूँ कि साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक हैं वो इस प्रकार से बातचीत करते हैं 3 बिलियन जो है सालों के बारे में, या फिर जो है कई लाखों करोड़ों सालों के बारे में अध्ययन करते रहते हैं। But according to the Bible, for the human being, from the time of Adam till the time of Jesus' millennium rule, or after the 1,000 years, is only 7,000 years.
और जब से आदम रचा गया तब से लेकर के जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर शासन करेंगे तब तक के लिए 7,000 वर्ष का मूल समय दिया गया है परमेश्वर के द्वारा। So to find out about that, we are going to see what happened pre-Adamic or before the creation of man. और हम देखेंगे आदम से पहले या सृष्टि करने से पहले जो है क्या हुआ। Many have asked me, what proof you have that before the creation of what I am going to talk later? और बहुत सारे जो है इस बात का सबूत मांगते हैं कि इसका क्या सबूत है कि रचना से पूर्व क्या हुआ या मनुष्य की रचना से पूर्व क्या घटित हुआ। Of course, no one knows about it. और हाल His net is disconnected, seems to be. Yeah. He's back again. Of course, no one knows about it. Pastor Deepak? Sister Joyce, can you translate? Switch on your mic. Try. Deepak. No, man. Okay, Pastor Deepak back again. Praise the Lord, praise the Lord. Thanks, Sister Joyce. Pastor Deepak? Of course, no one knows about it. What happened Okay. before the creation of यस और हालांकि कोई भी नहीं जानता कि सृष्टि से पहले क्या हुआ, क्या घटित हुआ। But there is one person who knows about it. लेकिन एक व्यक्ति है जो उसके बारे में सब कुछ जानता है The one who created God Himself. और परमेश्वर स्वयं जिसने इसकी रचना की है। I will show you some of the verse in the Bible where He says, I am God and I am saying this. और मैं आपको बाइबल से ऐसी कई आयतें दिखाऊंगा जहां पर वो इस प्रकार से कहता है कि मैं परमेश्वर हूँ, मैं ही ने ये कहा है। Of the things before this creation. और इस सृष्टि की रचना होने से पूर्व इन बातों को मैंने कहा है। So it is up to the individual whether they want to believe it or not. और ये आपके व्यक्तिगत रूप में निर्भर करता है कि आप उस पर विश्वास So we are करना going to चाहते see- हैं या नहीं करना चाहते We हैं। are going to see the new heaven and new earth, but not in this topic, but in the topic of number 9. और अभी हम जो है नए स्वर्ग और नई पृथ्वी को देखेंगे, लेकिन अभी नहीं, लेकिन 9वीं उसमें अध्याय में। I want to clearly mention in God's master plan, He has 700 years, 7,000 years for man. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की जो मूल योजना है वो 7,000 वर्ष की है मनुष्य के लिए। God has a plan in this world when He created the earth for mankind. और जब परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की तब उसके पास संसार के लिए एक योजना थी 7,000 वर्ष की। I have put the word He has recreated the earth for the mankind. और मैंने यहाँ पर एक जो है शब्द डाला है, इसको बोलते हैं पुनर्रचना। मनुष्य के tell लिए you उसने why. पुनर्रचना की। I will tell you और why. क्यों उसने पुनर्रचना की इसका भी मैं आपको कारण बताऊंगा। Mankind was the climax of God's creation, but why was man created in the first place in God's plan? मनुष्य परमेश्वर की रचना का चरम भाग था, परंतु परमेश्वर की रचना में उससे प्रथम स्थान क्यों प्राप्त है? Okay. First of all, we must understand in the entire Bible why God created man first. और पूरी बाइबल के अंदर हमें ये जानने की जरूरत है कि परमेश्वर ने मनुष्य को चरम पर क्यों रखा है। If you take your time to find out, I have already tried to find out myself. This is what I receive. और मैंने पहले ही जो है इसे ढूंढने की कोशिश की है, आप भी इसे ढूंढने में समय बिता सकते हैं, और मैंने जो पाया वो ये है। When God created Adam and Eve and He put them in the Garden of Eden, जब परमेश्वर ने आदम और हवा की रचना की और अदन की वाटिका में उन्हें रख दिया, in Genesis 2:15 He said to dress it up and to keep it. तो उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 2:15 में लिखा है देखभाल और सुरक्षा करने के लिए। So number one, God created man, Adam and Eve, to take care of the garden.
और परमेश्वर ने मनुष्य की रचना इसलिए की ताकि वदन की वाटिका की सुरक्षा कर सके और देखभाल कर सके and to keep it for himself. और अपने लिए और स्वयं उसमें बना रहे। Number 2, the Revelation chapter 4 verse 11, he said, it is his pleasure who he want to create. It's up to God what he wants to do. So nobody can stop him. और प्रकाशित वाक्य अध्याय 4:11 में लिखा है, तेरी इच्छा से ही वे तेरे लिए रचे गए हैं। इसका मतलब है कि ये उसकी मर्जी है, उसकी इच्छा है कि वो इस तरीके से बनाए, उससे कोई सवाल नहीं कर सकता। So it was God's pleasure that we are being created. और ये परमेश्वर की खुशी है, ये उसका आनंद है कि उसने हमें बनाया है। We cannot ask God why you create me. अब परमेश्वर से ये नहीं कह सकते, परमेश्वर तूने मुझे क्यों बनाया? He has every right to do it. और उसके पास अधिकार है कि वो कुछ भी कर सकता है। In Isaiah 43 verse 6 and 7, he said, I have created for my glory. That means it is for God's glory that he created man. और यशायाह नबी की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं अध्याय 43:6 से लेकर के 7, तो कहता है कि मैंने अपनी ही महिमा के लिए तुझे रचा है, अर्थात परमेश्वर अपनी महिमा के लिए हमें बनाता है। Ephesians chapter 2 verse 10, it says, we are all created in Christ Jesus for good work, for doing good work. और इफिसियों की किताब अध्याय 2 उसका 10 में जो है वो इस प्रकार से कहता है कि हम भले कामों के लिए रचे गए हैं। The final one, a mystery. और अगला जो है वो रहस्य है, You will only understand it at the end. और रहस्य को आप अंत में ही समझ पाएंगे, अभी नहीं समझ पाएंगे। This is actually a mystery. और असल में ये जो है रहस्य है। If we understand this mystery, you and I अगर आप will इस know how रहस्य to live को- a worthy life for God. अगर आप समझ जाएंगे इस रहस्य को, तो आप पाएंगे कि आप किस तरीके से योग्य जीवन परमेश्वर के लिए जिए। Who is God and why did he create man? और परमेश्वर कौन है? परमेश्वर ने मनुष्य की रचना क्यों की? Before we look into the matter of why he created man, let's see who is God. और परमेश्वर ने मनुष्य की रचना क्यों की, ये जानने से पहले जानना जरूरी है आखिरकार परमेश्वर कौन है। There are many things that we can talk about who is God, और बहुत सारी बातें हैं जब हम बातचीत करते हैं, अध्ययन करते हैं आखिरकार परमेश्वर कौन है, but I'm speaking a few things only. लेकिन मैं कुछ ही बातें बताऊंगा। God is self-existing. सबसे पहली बात है कि परमेश्वर अपने आप में अस्तित्व रखता है, He exists outside of the time and space. और परमेश्वर जो है समय ब्रह्मांड से बाहर अस्तित्व में है। What is the meaning of he exists outside the time and space? इसका क्या मतलब है कि ब्रह्मांड और समय से परे है। You and I are living in 2021, 2022. मैं और आप जो है आज 2022 में जी रहे हैं। We cannot go back to 2021 or 2020. मैं और आप जो है 2021 में या 2020 में नहीं जा सकते हैं, Neither do we know whether we will go to 2023. और हम ये भी नहीं जानते हैं कि हम 2023 में जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। But our God, he can go back anywhere he wants, even to the time of Adam, he can go back now. लेकिन जो हमारा परमेश्वर है वो किसी भी समय में जा सकता है, यहाँ तक कि आदम के समय में भी जा सकता है। He exists out of the time. वो समय से परे अस्तित्व में है। Do you know why do we call that he is a God of Abraham, Isaac and Jacob? क्या आप जानते हैं हम उसे क्यों कहते हैं कि वो अब्राहम का, याकूब का और इसहाक का परमेश्वर है? Jesus told in the book of John यीशु मसीह ने यूहन्ना की किताब में कहा that he is called the God of Abraham, Isaac and Jacob because he is not a dead God, he is a living God. और वो जो है अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर कहलाता है क्योंकि वो मृतकों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। So he is out of time means he can be in any time of any age itself. और समय से परे होने का मतलब है कि वह किसी भी समय में और किसी भी सिरे पर जा सकता है अपनी इच्छा के मुताबिक। And space means, that means he is everywhere.
He is the omnipresent. और ब्रह्मांड का मतलब है कि वह सर्वव्यापी है और किसी भी जगह किसी भी क्षेत्र में जाकर के वो जा सकता है। I have put the verse Isaiah 46:10. और मैंने यशायाह नबी किताब अध्याय 46 उसकी 10वीं बात को लिखा है। He can tell us from the end to the beginning everything he can tell us. और वो अंत से लेकर के शुरुआत तक सब कुछ हमें बता सकता है। So the next one, God is spirit. सो अगली बात है परमेश्वर आत्मा है। Meaning, what is the meaning of God is spirit? और इसका क्या मतलब है कि परमेश्वर आत्मा है? Jesus has illustrated or informed us in John 3 to Nicodemus about the Holy Spirit. और यीशु मसीह निकोदेमस को जो है यूहन्ना 3 में इस प्रकार से बताता है पवित्र आत्मा के बारे में। That a person need to be born again in spirit. और वो इस प्रकार से कहता है कि एक व्यक्ति को आत्मा से पैदा होना जरूरी है। He has related it to wind. और इसको जो है वो हवा के माध्यम से समझाता है कि हवा जिधर चाहती है उधर चलती है। We cannot see the wind, but we can feel it. और हम हवा को देख नहीं सकते परंतु वो हमें महकती है। The wind is here in Malaysia and also in India, the place where you are. और हवा जो है वो मलेशिया में भी पाई जाती है, भारत में भी पाई जाती है। Omnipresent. और ये जो है सब जगह है। Where the wind comes from and how it is going to go, no one knows. और ये हवा कहाँ से आती है, कहाँ अपने चक्रों में मुड़ जाती है, ये कोई नहीं जानता है। He is the Alpha and the Omega. और वो जो है अल्फा ओमेगा है। The beginning and the end. शुरुआत, आदि और अंत। He is the great I am who I am. और वो कहता है कि मैं जो हूँ सो हूँ। Okay, I want to answer one question which many of you all will encounter. और एक सवाल का जवाब देना चाहूँगा आप में से हर एक जो इसका सामना करते हैं। Who created God? परमेश्वर को किसने बनाया या परमेश्वर की रचना किसने की? I think many people would have asked that question. मैं सोचता हूँ कि बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं। The Bible gives us an answer to that. और बाइबल हमें इस बात का जवाब देती है। We can tell a lot of story that he got no beginning, he is eternal and so on. और हम बहुत सारी कहानी को बता सकते हैं कि वो इटर्नल कि वो अनंतकालिक परमेश्वर है, उसका कोई शुरुआत नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है। When people ask me such a question, और जब लोग मुझसे इस प्रकार का सवाल करते हैं, I said, your name is written in the Bible. तो मैं कहता हूँ कि आपका नाम बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। In the book of Psalm it says that only a fool will say that there is no God. और भजनकार इस प्रकार से कहता है केवल मूर्ख ने अपने मन में कहा कि कोई परमेश्वर नहीं है। You know that? क्या आप जानते हैं? I'm not a fool. और मैं मूर्ख नहीं हूँ। I know God exists. मैं जानता हूँ कि परमेश्वर अस्तित्व में है। You know why I said only a fool will say that? और क्या आप जानते हैं क्यों मैंने ऐसा कहा कि केवल मूर्ख ही कहता है मन में कि कोई परमेश्वर नहीं है? Because if I said God is created by A, अगर मैं ये कहूँगा कि परमेश्वर जो है ए के द्वारा रचा गया, the next question the fool will ask is who created the A? तो अगला सवाल जो है ए इस प्रकार से करेगा, तो अगला सवाल Because he doesn't believe God. Can someone continue to translate? It seems frozen. I don't know. It's not. Yes, our Joyce, map. continue. Let me see whether it is there. Joyce can translate or Pastor Stephen can translate. हेलो, Yeah. Yes. Hello, yeah. I think Brother Hello. Deepak came back. Okay. Yeah, he came back. Pastor Deepak? yes, I'm here. Then the fool will Okay. ask who created the A? तब मूर्ख जो है इस प्रकार से सवाल करेगा कि ए को किसने बनाया? When somebody doesn't believe God, he will put in a lot of unnecessary question and he is a fool.
और एक मूर्ख जो है इस प्रकार से जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता तो वो अनचाहे बहुत सारे सवालों को लेकर के आता The है। Bible says before material creation was spoken into existence, that is heaven and the earth, He was always there. और परमेश्वर का वचन बताता है कि भौतिक रचना के अस्तित्व में आने से पूर्व वह मौजूद था। Okay, this is something basic about God. और ये परमेश्वर के बारे में बुनियादी बातें There are a हैं। lot of things we can speak, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम बोल सकते हैं। but next we are going to handle the question, why did He create man? और अगला सवाल जो हम देखेंगे वो ये है कि क्यों परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की। Mankind was the creation, climax of God's creation, but why did God created man in the first place? और मनुष्य परमेश्वर की जन्म रचना है, परंतु फिर भी वह परमेश्वर की रचना में प्रथम स्थान क्यों रखता है। First thing you must understand, God did not create human being because He needed human. और पहली बात को हमें समझ लेना है, परमेश्वर ने मनुष्य की रचना इसलिए नहीं की कि मनुष्य की परमेश्वर को आवश्यकता थी। As I've told you, God created human because of His pleasure, His own pleasure. He wants to create it. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, परमेश्वर ने मनुष्य की रचना अपनी खुशी, अपने आनंद के लिए की। It is human who need God. ये मनुष्य है जिसे परमेश्वर की जरूरत है। God doesn't need human. He is self-satisfying. He's a self-satisfying और being. और परमेश्वर को मनुष्य की जरूरत नहीं है, परमेश्वर अपने आप में पूर्ण संतुष्ट है। In Ephesians 1:9 and 10, इफिसियों 1:9-10 में it says that having made known to us the mystery of His will, according to good pleasure which He purposed in Himself, that in the dispensation of the fullness of time, complete of time, He might gather together in all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth in Him. और इफिसियों 1:9-10 में इस प्रकार से कहता है कि उसने अपनी इच्छा का भेद उस सुमति के अनुसार हम पर प्रकट किया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ मसीह में एकत्र करे। Okay, I would like to take a time to stop here because about the creation of man is very important for us to understand. I will continue that in the next class. और अगली क्लास में हम जारी रखेंगे। यहाँ पर मैं जो है रुकना चाहूँगा क्योंकि मनुष्य की जो रचना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम इसे जान लें, ये ज़रूरी है। Thursday I will continue that. और थर्सडे जो है मैं इसके विषय में शुरू करूँगा। We are going to ask few questions. Please go through the notes before you come. It will make it easier for me to teach you. और आप जो है उस नोट से होकर के गुजरें, थोड़ा सा देखें, और जब आप आते हैं तो तैयारी के साथ आएँ ताकि हम आपको सिखा सकें, बता सकें। These are the questions, the 1, 2, 3 questions. You go and see for yourself, and we will go into that in next class. और ये 1, 2, 3 जो है सवाल हैं, आप इनसे होकर के गुजरें, आप इन्हें देखें। अगले क्लास में हम इन सवालों को देखेंगे। I hope you understand the Daniel 70 weeks, and this is the next topic that you need to understand before we go on to other topics about two phases of coming, the church and the tribulation period and so on and so forth. और दानियल के 70वें सप्ताह को आप समझ गए होंगे। इससे पहले कि हम आगे आएं और समझें कि जो 2 चरण हैं यीशु मसीह के आगमन के, उन बातों को हम जानें, तो आप जो है दानियल के 70वां सप्ताह को समझे, ये बहुत ज़रूरी है। If you all got these notes, I think you all didn't get this note, am I right? अभी तक आपको ये नोट्स नहीं मिले होंगे। I will send you the English one. The Hindi one you will get it at the end of next Thursday. और अंग्रेजी में मैं आपको भेज दूंगा, हिंदी में आपको जो है थर्सडे के अंत में मिल जाएंगे। Okay, I want to thank you all for your attendance, and I do not know why this class got very less people coming. Now I hand over the hand over the class to Pastor Dr. Kamraj. Thank you, Pastor Padrai. We are already 21 people are there now. If we exclude all 3 of us, then it will be